you have directed, you've written. तो ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब what did you used to dream about जब आप छोटी थी तो? I think I was always theater तो मैंने हमेशा से किया था from high school. Okay. I knew कि मुझ में बहुत ज़्यादा creative expression का like I need it. I need to do it. It's how I derive meaning in this world also. Okay. तो जब मेरे अब्बा अम्मा ने कहा कि आपने बिजनेस पढ़ना है तो मैं बहुत दुखी थी. I was always good at it. I was always a पढ़ाकू बच्चा and I did well at it. तो मैंने सोचा कि उनको क्या पता है, मैं जाऊंगी कॉलेज पे तो मैं एक माइनर कर लूंगी फिल्म में, उनको तो नहीं पता होगा. मैं उस कॉलेज जब गई पता चला कोई फाइन आर्ट्स ऑप्शन नहीं है. तो मैंने आउटसाइड ऑफ कॉलेज मैंने लाइक जहाँ जहाँ मुझे कोई वर्कशॉप्स मिले, एनिमेशन का, प्रोड्यूसिंग का, डायरेक्शन का, एक्टिंग आई केप्ट डूइंग इन यूनिवर्सिटी, जो प्लेज आते रहे. तो that's how I started from theater. Okay, so मतलब I'm really liking it. वो मतलब true passion था आपका कि business पढ़ते हुए भी आपने उसको give up नहीं किया. और एक छोटा सा rebel भी है आपके अंदर, है ना? Definitely. वो काफी बड़ा हो गया पाकिस्तान आके, मुझे लगता है. उससे भी हम बात करेंगे अभी. You were studying at McGill. Yes. Right? And that's where आपने जहाँ से business किया और तभी आप साथ साथ में ये छोटे courses कर रही थी. Yes. So your parents were not in approval of your आपकी उनकी I think it's it's my mother was always okay. She comes from a very artsy family herself. Okay. A lot of actors, writers, journalists. My father himself, he was from the business field. He was a banker. तो उनको I struggled with it a lot at that time कि क्यों नहीं उनको क्यों, because he also appreciates the arts. He's a art lover, paintings and things like that. But he never wanted it for us. Maybe he had seen a lot of struggling artists in his time. Yeah. So, obviously as I grew up, I kind of tried to justify कि क्यों वो ऐसे सोचते हैं, क्यों वो इतना इख्तिलाफ किस वजह से. But it's probably what someone knows and they're comfortable with. He was never okay with me going into the arts as a career. आप काफ़ी अर्से पहले की भी बात करी, मतलब अब जाके एक्सेप्टेबल हुआ है फॉर फीमेल्स के वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें. सोशल मीडिया ने थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर दिया, वरना मुझे लगता है ये चीज़ तो हमेशा से एसोसिएटेड थी. सो इवन इफ़ यू वुड अप्रिशिएट आर्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिलीज को ज़रा मसला होता था कि हमारी बेटी या हमारे घर की एक फीमेल जो है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन और इसीलिए मैंने शायद फिर थिएटर किया, बिकॉज थिएटर इज़ नॉट as mass media and televised. And I joined TV a little bit later. Maybe subconsciously ये भी चल रहा था. But हाँ. But Meher, अब तो लोग actually there's a respect associated with this profession. लोग respect करते हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है तब तो थोड़े उस तरह के comments भी आ जाते थे. अगर comment नहीं भी दे तो एक नज़र शायद आ जाती थी, तो I think इस वजह से भी वो करते होंगे. But Annie ने आपसे पहले join किया. Annie ने मुझसे पहले So she was the one जिसने boundary को break किया. So actually I started doing film before Annie did, because मैं Seedlings पे, so I was working on producing and directing. Okay. So behind the camera. I had started my film career before Annie had, but she started on television acting before I did. Okay. And yes, I think at that time it was not as accepted as it is today. I mean, one of my closest friends is Sanam Saeed. So when she started, a lot of the people in that generation of actors really took on the brunt of the brunt of also the riskiness of being on TV, but also forged the way in making it seem seen as a respectable profession. True. Mahira, Sanam, people from educated backgrounds and who brought craft to their profession, not just showbiz and not just दिखावा. और also I feel उनका background भी थोड़ा सा different था. They were all उन्होंने पढ़ा हुआ भी था और वो थोड़े से different background से आ रही थी, तो वो भी एक change था. मुझे लगता है वो change वहाँ से होना शुरू हुआ जब आप सब लोगों ने join किया. तो एक different point of view भी आप लोग लेकर आए, जो एक refreshing भी था और कुछ लोगों को struggle भी हुई उस वक्त समझने के लिए उसके साथ. आपने पढ़ा, college O levels किया, फिर आपने कॉलेज, फिर आप McGill चली गई पढ़ने के लिए 4 साल बिजनेस. जी. तो पाकिस्तान क्यों वापस आई? कहीं और बाहर क्यों नहीं जॉब किया आपने? What brought you back to पाकिस्तान? जब मैं बिजनेस पढ़ रही थी, मैंने कहा यार मैं मार्केटिंग और फाइनेंस तो नहीं करूँगी. मेरा करियर ये नहीं हो सकता है कि मैं लोगों के लिए लिपस्टिक्स और शैम्पूज में मार्केटिंग करी हूँ, या फिर मैं फाइनेंस में जाके बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेशंस के लिए प्रॉफिट मोटिव ही इज माई होल जॉब डिस्क्रिप्शन. To me, that didn't sit right with me. तो मैंने social entrepreneurship फिर पढ़ा कि किस तरीके से हम investment ला सकते हैं into social enterprises. कि मतलब कि health, housing, water, agriculture, things like that in Pakistan. तो there was an organization, Acumen Fund के नाम से, जिन्होंने invest किया था एक project में, साइबान नाम था, खुदा की बस्ती उनके projects थे, जो कम आमदनी वाले households को they work to मतलब
उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो दैट दे कैन ओन देयर ओन होम्स बेसिकली. तो एक पूरा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल है जो अगर आपने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का सुना है जो डॉक्टर अख्तर हमीद खान का था, उनका इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था. इट्स लाइक इंक्रीमेंटली वी डेवलप सैनिटेशन हम लाएंगे, फिर हेल्थ सर्विसेज लाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे. इंक्रीमेंटली हेल्प the low income community household. Basically Exactly. Create a community, and at the end the goal is that they own their own housing. तो उनके जो successor थे वो थे डॉक्टर तस्नीम सिद्दीकी. तो उनकी प्रोजेक्ट में मैंने थीसिस किया हुआ था उनके प्रोजेक्ट पे जब मैं McGill पे थी. तो 2 years later जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो there was a job opening in an investment organization that had invested in that organization. So a perfect match था. तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट इसीलिए हुई to work with Acumen Fund and to work खुदा की बस्ती की प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. तो फिर 2 साल बाद वो प्रोजेक्ट, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेटली लैंड बहुत पोलिटिसाइज्ड है, तो बहुत मुश्किल हुआ हमें सब्सिडाइज लैंड हासिल करने में फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो उन्होंने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया था लाहौर. और उस वक्त उन्होंने कहा था जब हम लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, यू एज अ फीमेल आप फील्ड में नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, आपको ऑफिस में ही रहना होगा. मैंने कहा यार मैं काला शाह काकू जाऊंगी ऑफिस में रहने के लिए, ये तो क्योंकि मेरा पूरा मोडस ऑपरेंडे है लोगों से कम्युनिकेट करना, मिलना एंड टू डू फील्ड वर्क माई सेल्फ. तो मैंने कहा अगर मैं वो वाला काम नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैं वही करूँ जो मुझे हमेशा से शौक था, पैशन था, ड्राइव था, विच वॉज फिल्म मेकिंग. तो 2010 में मैंने अपना फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोला. एक पार्टनर थे मेरे उस वक्त मेरे साथ, ऑस्ट्रेलियन पर्सन बाय द नेम ऑफ समर निक्स. ही इज़ नॉट हियर एनी मोर, सो आई रन इट ऑन माई ओन नाउ. 2010 वी स्टार्टेड और हमारा पहला प्रोजेक्ट सीडलिंग्स था. तो मतलब उससे पहले आपने कोई थिएटर, कोई प्रोडक्शन नहीं की, बस आपने कहा मैं प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ, यू स्टार्टेड इट और फिल्म भी बनाना शुरू कर दी. इन अ वे ये एक हमें फोर्स किया गया ऐसा तरीका वो निकालने का, बिकॉज उस वक्त मेरा था कि मैं एक्सपीरियंस करूं, मैं मतलब एक्सपीरियंस हासिल करूं कि मैं एडी करूं. आई वांट टू एडी ऑन प्रोजेक्ट्स बट नो वन टुक अस. दे वर जस्ट लाइक आप कौन है. अस का क्या मतलब है? मीनिंग कि मैं जो 2-3 फिल्में जो उस वक्त बन रही थी, लाइक आई थिंक रफीना एक बन रहा था जो सबिया सुमार कर रही थी. खुदा के लिए तो बहुत पहले बन चुकी थी बट बहुत ही कम फिल्में थी. टीवी में हम किसी को जानते नहीं थे और टीवी वाज वेरी डिफरेंट टू वर्क विद. तो नो वन वाज गिविंग अस अ चांस कि हम उनके साथ काम करें कि आप कौन है, कहाँ है आपका रेज्यूमे, आपका क्या. कौन है? मैं ये जान मी एंड समर निक्स. ओके माय अच्छा शायद मेहर अपने आप को हम कहती है. नहीं मैंने इससे पहले तो नहीं था. मैं ये जान, या फिर एनी की बात हो रही थी या क्या? अच्छा नहीं सो यू एंड समर निक्स. हां, सो ही इज योर फ्रेंड. ही वाज एक्चुअली सनम ने ही मुझे मिलवाया था. वो एक उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी थी, वो खुद ही वाज इनटू फिल्म मेकिंग, ही हैड शिफ्टेड टू पाकिस्तान. तो सनम ने मुझे मिलाया था. तो हम बहुत बात करते थे कि यार हमें ये बनाना. तो हमने स्क्रिप्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें पता था कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए पहले. तो आई वुड गो एंड ट्राई टू गेट जॉब्स ऑन फिल्म सेट्स एंड आई वुडंट गेट द चांस. तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया यार हम खुद ही फिल्म बना लेते हैं. तो मैंने कहा आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, आई विल टेक माई बिजनेस स्किल्स, मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तुमने स्क्रिप्ट लिखा है तुम वो राइट करो. हमने ज़ैबिस से बहुत ऑडिशंस तो नहीं कहेंगे लेकिन हमने एक डायरेक्टर को ढूंढा, वहाँ पे उनकी रील्स देखी जो ग्रेजुएटिंग फिल्म क्लास के जो ग्रेजुएट्स थे. हमने बहुत उनकी स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स देख के वी सिलेक्टेड अ डायरेक्टर एंड आई यूज्ड माय बिजनेस स्किल्स टू रेज द इन्वेस्टमेंट, रेज स्पॉन्सरशिप. और फिर और सब कुछ गूगल किया ये तो बहुत ही एक ना वो ड्रीम लग रहा है. जो हमारे जहाँ हमारे पास बहुत कम पैसे थे बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन क्वालिटी ऑब्वियसली फिर वो उसी स्केल की है. मुझे लगा उसको उसने आर्टिस्टिक फील दे दी. Yes. That's what I thought. I didn't know. मुझे लगा आपकी लुक ही ऐसी है. हाँ. जो मैंने ट्रेलर देखा. I mean it is an independent film. लेकिन I think the most important thing for a film or any narrative project is the script and obviously the talent. तो हमारे पास जहाँ पैसे कम थे वहाँ पे बहुत strong script था. एक्टर्स हमारे पास क्या एक्टर्स थे. आई वाज सो लकी कि आमना शेख एंड मोहिब मिर्जा. हम तो उस वक्त गौहर का वो पहला प्रोजेक्ट था स्क्रीन के लिए. उसने शायद बहुत थिएटर किया हुआ था बट ही हैड नेवर डन एनीथिंग टीवी के लिए या फिल्म के लिए. तो वो भी नया था. तो हमारे लिए जब आमना और मोहिब आए थे और हमने उनको स्क्रिप्ट पढ़ाया था और उनको हमारी विजन और स्क्रिप्ट समझ में आई, we were like wow, because we were nobodies but they were somebodies on TV. So they took a chance on us. That was huge. And I mean brilliant actors. And then just Gohar, I remember मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब वो ऑडिशन पे आया था.
तो ही जस्ट